Yes. So first we need to start by framing our goals. To make a smart goal, first we need to write down what our goals are. So you can divide your goals in three parts. Short-term goals that are like 1 to 3 years away. Medium-term goal 3 to 7. Long-term goals beyond 7 years. So I'm giving you a minute. Just write down some of the goals. At least one in each category. Just write down at least one in each category. So like I will be showing mine, like I have made this sheet. So after writing down, we need to have this prioritization also, because we may be having 10 goals, but 5 goals may be utmost importance to us, like our kids' education, our retirement fund, or business setup, or emergency fund. Some goals are like we can't negotiate. Some goals are like our wants, like I want to have vacation, I want to go on the foreign vacation, I want to buy a luxury car, I want to have fund for the foreign education of my kids. So these are the our wants. So we need to define. First, we need to have the goals, and then we need to give it the priority. Is it a high priority goal? Is it a medium priority goal, or is it a low priority goal? So high priority we call for the needs. Like ये तो मुझे करना ही है. Wants, yeah, I want to do it if I have fun. And dreams, low priority goals are kind of our dreams. We want to do it if we are having enough funds. इस लाइक हमारी जरूरत, चाहत एंड हसरत. जो हमारी जरूरत है वो हमारी नीड है, जो हम चाहते हैं वो हमारी वांट्स है, जो हमारी हसरतें हैं वो ड्रीम्स हैं. तो फर्स्ट वी नीड टू राइट इट डाउन. लाइक इन मैनिफेस्टेशन ऑल्सो वी से फर्स्ट गेट द क्लैरिटी व्हाट यू वांट, then only you can manifest. It's kind of setting the intention, getting the clarity. So it works in many ways. Like in life also it works, in finance also it works. Many times we just do financial planning के ठीक है जितना भी है हम सेव कर लेते हैं, अल्टीमेटली यही हमारे सारे गोल्स के लिए काम आने वाला है. बट इट डजंट गो दैट वे. अगर हम आप गोल प्लानिंग करेंगे, यू विल सी ट्रमेंडस चेंज. You will see like now you are also learning about manifestation. I am also learning about that. The more clarity you can get, the faster you will achieve your goals, and you will be getting all the opportunities and all the things you will attract. So this I have taken off track for this finance part, but I really want you to have the clarity on your goals. It is like setting the intention, having the road clear, what I want, and then we will see how much I want, and then we will see how much can I get now. And it's not like if we are writing down the goals today only, I want to have fun for all. Some people may have it today, all the fun, but most of us may not be having the fun to fulfill our needs, wants, and dreams. So we have to wait for some times. But the first step is to get the clarity, setting the intention, and then putting some, then making them smart goals. A smart goal is nothing but making them specific, making them measurable. Like if I want a good education for my child, it's very vague. First I need to like bring it down. Okay, I don't know what my kid will be doing, but today if I'm planning, I feel like okay, अगर मेरा बेटा IIT से इंजीनियरिंग कर रहा है, एटलीस्ट दैट मच फंड शुड आई मैनेज. तो एक वेग आइडिया लेके आना है. वी नो वन ऑफ अस नोस कि क्या करने वाले हैं बच्चे, या हमें कितना फंड एक्चुअल में चाहिएगा. बट वी नीड सम बेस लाइन. तो उसके लिए आपको ना एक मीजरेबल बनाना पड़ेगा. आपको अभी अपना ऐसे सोचना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हो कि क्या करें. वी आर नॉट गोइंग टू फोर्स आवर किड, बट जस्ट एक बेस लाइन, एक मॉनेटरी टर्म देने के लिए आपको ना उसको एक स्पेसिफिक और एक उसको मीजरेबल बनाना पड़ेगा. तो फॉर दैट यू हैव टू थिंक इन योर माइंड कि ठीक है, मैं चाहती हूँ कि चलो आईआईटी में मेरा बच्चा पढ़ ले. तो उसके लिए हर साल उसके लिए कितना खर्चा लगेगा, प्लस उसके जो भी ट्यूशन फीस के अलावा भी हॉस्टल में रहेगा, ट्रैवल का एक्सपेंसेस, ऑल दोस थिंग्स यू कैलकुलेट इन टूडेज टर्म. ठीक है. एंड देन इट शुड बी अचीवेबल ऑल्सो. जो हमारे करंट फाइनेंसेस है उनसे हमारा गोल मिलता जुलता होना चाहिए. ऐसा नहीं कि अभी मेरी सैलरी तो है कि 10 लाख ही कमा रही हूँ, पर मैं चाहती हूँ बच्चे को मेरा फॉरेन में पढ़े मेरा बच्चा, मैं उसके लिए 1 करोड़ 2 करोड़ फंड इकट्ठा करना चाह रही हूँ, बट आई कांट सेव 10,000 ऑल्सो. तो दैट इज नॉट अचीवेबल. तो वी हैव टू मीजरेबल भी करना है, एंड दैट शुड बी अचीवेबल. इट कुड बी लिटिल चैलेंजिंग, but it should be realistic. So as in when our finances increases, we can always increase the amount, and it should also be relevant. ऐसे नहीं कि बस हाँ मतलब मैंने कुछ भी गोल प्लान कर लिया कि चलो मैंने रिटायरमेंट डाल दिया, फाइनेंशियल फ्रीडम एट 40 डाल दिया. I have not planned anything, but I want financial freedom in just 5 years. तो first you need to see overall picture, and it should be relevant also with financial priorities और आपके लाइफ के जो प्लान है, आपको क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके किड्स के लिए, अपने लिए, स्पाउस के लिए या घर के लिए.
You have to see overall picture, and then you have to assign the time also कि हाउ मच टाइम इज देयर फॉर द गोल. लाइक जैसे अगर मेरे बच्चे का एजुकेशन है तो 10 साल के बाद है, 5 साल के बाद है, 15 साल के बाद है. आई नीड टू बी क्लियर कि कितना टाइम है उसके लिए. दिस इज द वे टू सेट द स्मार्ट गोल्स. So this is actually I have designed for myself. So first is emergency fund. I want to set and the priority is high. Online business setup, and then parents health insurance, and then my kids high both my kids higher education, and then retirement fund, and then come these all are, you can see, the high priority things. And then vacation, foreign vacation, car purchase, मैं बच्चों की शादी, बाहर पढ़ाई, और हाँ कुछ बिजनेस, बड़ा बिजनेस सेटअप करना. ऑल दीज आर मीडियम एंड लो प्रायोरिटी थिंग. यू नीड टू हैव द क्लैरिटी फॉर कि हाँ आपके लिए अभी क्या ज्यादा जरूरी है. एंड देन यू नीड टू पुट द टाइम ऑल्सो कि आपको क्या चीज अभी चाहिए, 1 ईयर में चाहिए, 10 में चाहिए, 15 में चाहिए. एंड देन यू नीड टू राइट दिस करंट वैल्यू, मीन्स कि अभी आज की डेट में अगर आपको वो चाहिए तो आपको क्या है. जैसे कि बच्चे की एजुकेशन है, अगर आज की डेट में आपका बच्चा पढ़ने जा रहा है तो उसको कितना पैसा चाहिए उसके लिए आपको. जैसे 4 साल की एजुकेशन के लिए मुझे लगा कि हाँ चलो 4-4 लाख का करके 4, अगर 16 लाख मेरे पास फंड है, दैट शुड बी इनफ फॉर नाउ. तो दोनों बच्चों के लिए हमें ये करंट वैल्यू निकालना है. एंड द फॉर्मूला दैट आई शेयर्ड वाज फॉर द फ्यूचर वैल्यू. लाइक जैसे कि आज की डेट में मुझे मेरे बच्चे की एजुकेशन के लिए 16 लाख का फंड चाहिए, पर 10 साल के बाद उसकी वैल्यू 16 लाख नहीं होगी, उसमें मुझे इन्फ्लेशन कंसीडर करना पड़ेगा, तो उसकी वैल्यू 41 लाख हो जाएगी. और जो मेरे छोटे बेटे के लिए जो 17 साल के बाद मुझे सेम 16 लाख चाहिए, वो 80 लाख हो जाएगा. तो व्हेन वी डू दीज कैलकुलेशन, तो जो नंबर आते हैं ना वो काफी डिफरेंट होते हैं. तो इट्स इंपॉर्टेंट स्टेप कि हाँ पहले हम उनको लिखें, स्मार्ट गोल्स बनाएं, देन वी विल सी द फ्यूचर वैल्यू. एंड आफ्टर फ्यूचर वैल्यू वी नीड टू सी कि कितना उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. एंड देन वी सी, नॉट देन, जैसे बिफोर हम लोगों ने सेशन लिया था रिकॉर्ड एंड एक्सपेंस ट्रैकिंग एंड सेविंग, तो उससे हम मैच करते हैं कि हमारा जो सेविंग है उससे हम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं. एंड देन वी डिफाइन अगेन कि हाँ अगर हमारे पास, जैसे अभी मेरे पास 6 हाई प्रायोरिटी आइटम है, बट द फंड आई एम हैविंग कैन फुलफिल ओनली 4 माई हाई प्रायोरिटी नीड, देन आई नीड टू रीफ्रेम देम कि हाँ 4 प्रायोरिटी कौन सी मेरी हाई है जिनको मैं पहले पूरा करना चाहती हूँ. सो लाइक दैट वी डू ऑल दीज थिंग्स. Till now, is it clear? If you have any doubt, you can ask. Yes, it's clear. Yes. So I will tell how to calculate in Excel also. Here I have just shared. And today we will be seeing the wealth formulas also. I have made 2 formulas. So you just have to put the number, like if you know, जैसे here हम लोगों ने क्या किया, जैसे मैंने 4th नंबर पे डाला है मेरा ऋषित की एजुकेशन के लिए 10 साल के बाद मुझे 16 लाख चाहिए. ठीक है. और मतलब टारगेट अमाउंट इसमें हो गया हमारा 41 लाख. मुझे 41,50,000 चाहिए जब 10 साल के बाद उसका ग्रेजुएशन का टाइम आएगा. तो इन द वेल्थ फॉर्मूला व्हाट यू हैव टू डू, अगर आपको टारगेट अमाउंट पता है, लाइक टारगेट अमाउंट इज हियर फ्यूचर वैल्यू, मुझे पता है कि 10 साल के बाद मुझे कितना चाहिए. एक्सपेक्टेड रिटर्न मुझे पता है कि मैं अगर एफडी में डाल रही हूँ तो मुझे यहाँ पता है 7% मिलेगा या 8% मिलेगा, अगर मैं स्टॉक में डाल रही हूँ तो 12% मिलेगा. एंड देन यू नीड टू नो योर टाइम फ्रेम कि कितने साल हैं उस गोल के लिए. जब आप स्मार्ट गोल फ्रेम कर लोगे उसके बाद आप ये वेल्थ फॉर्मूला लगा के आप निकाल लोगे कि मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना है. अगर मुझे एनुअल एसआईपी करना है इस गोल के लिए तो मुझे 1,95,000 रुपीज लगेगा. मंथली मुझे इस गोल के लिए 17,000 पर मंथ मुझे सेव करना पड़ेगा केवल मेरे एक गोल के लिए ही. तो इससे हमें क्लैरिटी आता है अपने गोल्स को समझने के लिए कि हमें अपना इनकम और बढ़ाना है, एक्सपेंसेस कम करने हैं, या फिर हमारे पास ठीक है, ठीक ठाक है. तो एंड सिमिलरली द वेल्थ फॉर्मूला 2 इज कि हाँ अगर मैं 10,000 की एसआईपी कर रही हूँ तो मेरे पास 25 साल के बाद कितना फंड इकट्ठा हो जाएगा. So all these rates and number you can change. Okay, so I think now we will go with the Excel sheet and see. So this was the SMART goal thing. So Rupal, what was the confusion here to you? Sir, I want to know the process of applying the formula of calculating the inflation and future Okay. value regarding. You don't have to apply any formula. I have applied the formula in this future value column.
But I have tried. I have put one amount in first column, right? Something value, and but future value didn't change according to the Okay, formula. actually So here, I got see, confused. you have to change time and then you have to write inflation also. When there is time and inflation, then मतलब अगर आप inflation डाल रहे हो, आपका पैसा increase हो रहा है value, then only the value will change. Like for emergency fund, I have put the time 0 because right now I want and there is no inflation I have considered. So it will just remain 10 lakh only. For similarly for Okay, business, okay. I have That's why it written, was not yes, I have complete. That's written why it was time. the same amount. Yes, yes. I have not written any inflation. So let's say here if I'm putting inflation at 6%, so the amount will change. See, now the amount has changed to 2,12,000. So your time and inflation will change the amount. If you need the amount right now, so there will be no inflation. If you need 5 years later, but there is no inflation, the amount you feel is going to be the same. There is no increase in the price. तो आपका फ्यूचर वैल्यू सेव रहेगा. बट जब हमें लगता है कि महंगाई बढ़ रही है, लाइक कॉलेज एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, यहाँ पे भाई बेंगलोर जैसे सिटी में 10% स्कूल हर साल पैसे बढ़ा देते हैं. तो आई हैव कंसीडर 10% इन्फ्लेशन के 10% से बढ़ रही है आजकल महंगाई एजुकेशन की स्पेशली. तो मैंने उससे 10% से इन्फ्लेट किया है. 10 साल का टाइम में आप यहाँ पे टाइम और इन्फ्लेशन चेंज करोगे, देन योर फ्यूचर वैल्यू विल गेट चेंज. बस यहाँ रिटायरमेंट में थोड़ा चेंज है. जो रिटायरमेंट वाला है वो मेरा, जैसे कि आज की डेट में मुझे चाहिए कि 1 लाख रुपए हर महीने मुझे मिलता है रिटायरमेंट में जब हम 60 के हो जाएंगे. अभी उसके लिए 25 साल हैं और 6% से अगर मैं ये पैसा बढ़ाती हूँ तो 25 साल के बाद जो 12 लाख मुझे आज की डेट में चाहिए, उसकी वैल्यू 6% इन्फ्लेशन से 51 लाख हो जाएगी. मतलब जो मेरा खर्चा आज की डेट में 12 लाख रुपए से साल में चल जा रहा है, उस टाइम पे सिमिलर लाइफ स्टाइल के लिए मुझे 51 लाख रुपीज चाहिए होगा 1 साल में. तो ये मैंने निकाला है अपना 30 ईयर का, कि रिटायरमेंट के बाद चलो अगर मैं 60 पे रिटायर हो गई या 55 पे हो गई या मुझे 30 ईयर और रिटायरमेंट में रहना है, तो यहाँ पे वो आपका अमाउंट खुद से आ जाएगा कि हाँ अगर मुझे 30 ईयर रिटायरमेंट में रहना है तो मुझे 7 करोड़ 51 लाख का मुझे फंड चाहिए. तब मुझे आज की रेट का 1 लाख रुपए महीने उतना लाइफ स्टाइल में मेंटेन कर पाऊंगी. मुझे मेरे रिटायरमेंट के 30 साल के लिए मुझे 7 करोड़ 51 लाख रुपए इकट्ठा करना है, तब मेरा रिटायरमेंट कंफर्टेबली रहेगा. आपको समझ आया ये रूपल? Yeah, I got it now. Thank you so much. हाँ. And now the next step for today is like we have to find monthly SIP required. So you can find annual also and monthly also. ठीक है. तो यहाँ पे हम मैंने ये 17,000, जैसे मैं एक समझाती हूँ, जैसे ऋषित के एजुकेशन के लिए मैंने यहाँ लिखा है ये 17,000 कैसे आया. तो इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बनाया है हियर. तो जहाँ पे मुझे टारगेट अमाउंट पता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न पता है, टाइम पता है. मैंने उसके अकाउंट में ऑलरेडी 1 लाख इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो मैंने यहाँ इनिशियल इन्वेस्टमेंट लिखा है 1 लाख. उसके अकाउंट में ऑलरेडी 1 लाख मैंने इन्वेस्ट किया है. अब मुझे फाइनल अमाउंट कितना चाहिए, जो फ्यूचर वैल्यू है दैट इज द फाइनल अमाउंट. यहाँ पे मेरा फाइनल अमाउंट है 41,50,000. तो मैंने ये सेम अमाउंट मैंने यहाँ लिख दिया है फाइनल अमाउंट में. और मुझे लग रहा है कि इक्विटी में मैं उसका इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, मुझे 12% रिटर्न मिल जाएगा. 10 साल का मेरे पास टाइम है. तो ये जो ग्रीन सेल है ना वो खुद से आपके कैलकुलेट हो जाएंगे. जो व्हाइट सेल है उसमें आपको नंबर डालना है, और जो ग्रीन सेल है उसमें आपका खुद से नंबर कैलकुलेट होके आ जाएगा. तो अगर मुझे 41,50,000 का फंड 10 साल में इकट्ठा करना है अपने बच्चे के लिए, तो मुझे या तो साल का 1,95,000 ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए बचाना है, या फिर मंथली में उसका 17,000 का SIP स्टार्ट कर दूं. और अगर यहाँ पे अगर आपका इनिशियल कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो यहाँ पे आप 0 लिख देंगे. तो अगर आप यहाँ पे 0 कर दोगे तो आपका अमाउंट देखो खुद से चेंज हो गया. अगर मेरा इनिशियल अभी कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है सेम अमाउंट के लिए, तो मुझे 2,11,000 करना पड़ेगा या मंथली 19,000 करना पड़ेगा. इज दैट क्लियर? Yeah, so we can edit it through the laptop only, right? लैपटॉप में थोड़ा अच्छे से दिखता है ना, दैट्स व्हाई आई रिकमेंडेड कि हाँ आप ये यूज करो. अच्छा, आप अपना कोई Yeah, गोल. because I have tried through the mobile only. I didn't go through the laptop. That's why I'm asking. अच्छा ठीक है. अब आप रूपल आप कोई भी अपना एक गोल बताइए. उसके लिए आपको कितना अमाउंट चाहिए, कितने साल के बाद चाहिए? 4 तारीख से 4 तारीख को आंगनबाड़ी धूमड़ा. हैव यू रिटन एनी स्मार्ट गोल? Yeah, one I have written only. Okay, one you tell, one long term you tell. One long term is higher education. Okay, higher education, how much value you need?
I think mm, 6 तारीख को सोना फर्स्ट के so how can we calculate the base value regarding education? फर्स्ट आप आज की डेट में वैल्यू देखो, जैसे आपको जिस कॉलेज में लगता है कि हाँ मुझे ये वाले कॉलेज में बच्चे को पढ़ाना है, तो यू कैन गूगल के क्या क्या वहाँ का खर्चा है, ईयरली क्या एक्सपेंसेस आता है, पूरा ग्रेजुएशन का क्या खर्चा आएगा। कि आपको खुद एमबीए करना है तो अगर आप अपने लिए देखना है तो कितने साल का प्रोग्राम है, कितना फंड चाहिएगा, तो यू कैन गूगल और आप आज का अमाउंट पता करो उससे। 8 तारीख का है। So I think One it's fourth quite is unpredictable last for me right now because in my condition it's not with my decisions only. So I can't decide right now. So you can calculate according to the basic level is you want. हाँ, तो आप किसके लिए प्लान करना चाह रहे हो, अपने लिए या बच्चे के लिए? For a child. चाइल्ड, हाउ ओल्ड इज योर चाइल्ड? Yeah, one is 7, one is 4-year-old. 11 और 12 का 1 is GPS की रात। 7, तो आपको आई थिंक 11 ईयर के बाद चाहिए पैसा, राइट? Yeah. ठीक है, तो यहाँ पे आई एम डूइंग टाइम 11। और आपको क्या लगता है कि क्या करेगा वो, मतलब इट्स नॉट क्लियर, वी आर जस्ट पुटिंग सो दैट वी कैन हैव समथिंग फॉर आवर किड्स। जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली यही हो या मेरे हस्बैंड कुछ और बोल रहे हैं, एटलीस्ट कुछ अपने दिमाग से आप सोचो कि क्या आपको लग रहा है कि आपका बच्चा बीबीए करेगा, बीकॉम करेगा, बीएससी करेगा, बीटेक करेगा, क्या करेगा, या बाहर पढ़ने जाएगा। क्या आपको लगता है कि आज की डेट में जो भी आपका मन क्या है उसको कराने का, या आप चाहते हो डॉक्टरी करे? See, I can't say anything about this because I won't decide for my child. Child will decide what he wants to do when he will Yes, it's be for, in this यार stage. इट्स जस्ट फॉर डिसाइडिंग द मनी। हम यार, मैंने जैसे लिखा इंजीनियरिंग का आईआईटी से, आई एम नॉट श्योर कि वो करेगा भी इंजीनियरिंग के नहीं, उसको क्या करना है, दे ऑल विल डिसाइड। बट एटलीस्ट वी शुड हैव सम फंड, कुछ बेस लेवल का हमें फंड इकट्ठा करना है। एंड दिस एक्सरसाइज इज फॉर दैट ओनली, सो दैट हमें धीमे धीमे क्लैरिटी आने लगे। हम आई एम नॉट सेइंग कि यू हैव Yeah. टू फोर्स टू डू दिस टू दिस कॉलेज। जस्ट एक बेसिक लेवल अगर हमें कुछ भी करना है ना, तो वी हैव टू डिसाइड सम बेसिक लेवल। अगर हम यही सोचते रहेंगे ना कि ठीक है पता नहीं क्या होगा, कितना करना पड़ेगा तभी पता चलेगा, तो वी विल नॉट बी एबल टू हैव एनीथिंग। Yeah. So we can go for medical education. ओके, तो मेडिकल एजुकेशन में आपको क्या लगता है कि 5 साल का होता है, 4 साल का एमबीबीएस होता है, कितना उसके लिए खर्चा No, no, it's 5.5 year. ओके, हाउ मच यू फील कि 5.5 ईयर में कितना खर्चा हो जाएगा? Into present scenario, यस, this can be 20-30 lakhs, 25 to 30 lakhs. ओके, लेट्स पुट 25 लाख, ठीक है। 4 दिन तक जी। और आपको क्या लगता है कि हर Yeah. साल कितना कितना परसेंट फीस बढ़ जाता है, 5%, 10%? तो आपकी हालत है तो 8 to 10% we can 8, चलो लेट्स से calculate. 8% ओनली, ठीक है, मैंने 10% लिया था, लेट्स से Yeah. 8%, ठीक है। हमने 5 साल के लिए 25 लाख रुपए लिया है, हर साल मान लो कि 5 लाख का खर्चा होगा, टोटल वैल्यू हमने 25 लाख लिखा। 11 साल बाद के लिए आपको पैसा चाहिए, बट 8% से आपको लग रहा है कि पैसा बढ़ जाता है, ठीक है। तो उसके लिए आपका फ्यूचर वैल्यू होगा, जब 11 साल के बाद आपका बच्चा जाएगा पढ़ने के लिए, तो 11 साल के बाद उस 25 लाख की वैल्यू 58 लाख हो चुकी होगी, ठीक है। तो अभी हम उसका निकालते हैं 58 लाख का। यहाँ पे आपका देखो फाइनल अमाउंट आ गया 58,29,000, ठीक है। और ये आपको चाहिए 11 साल बाद, तो आप यहाँ पे 11 डाल दोगे। और आप जैसे मान लो अगर आप निफ्टी 50 में ही आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 12% आपको रिटर्न मिलेगा। तो आज की डेट से आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है उस एजुकेशन के लिए, तो 22,000 रुपए आपको हर महीने सेव करना पड़ेगा और इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जहां पे आपका 12% रिटर्न आए। अगर आप मान लो कि आप सोचो कि एफडी में ही मुझे इन्वेस्ट करना है, अगर आप यहाँ पे 8% रिटर्न लगाओगे, देन यू हैव टू सेव 28,000 रुपीज पर मंथ, और या फिर एनुअली आपको 3,24,000 सेव करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग इट? Oh, yeah. Yes. तो लाइक दैट एक्चुअली वी आर नॉट क्लियर, मतलब आपको 100% क्लियर नहीं होना है, जस्ट फॉर द बेस लाइन कि हम क्या चाह रहे हैं, कितना फंड अपने बच्चे के लिए बनाना चाह रहे हैं, या अपने रिटायरमेंट के लिए कितना बनाना चाह रहे हैं। Just for that base level we are calculating and we are creating a basic financial plan.
ताकि हमारी बेसिक सारी पहले चीजें थोड़ा थोड़ा अलाइन होना शुरू हो. वी विल रिफाइन इट ओवर एंड ओवर अगेन. एंड दिस इज लाइक सेकंड फॉर्मूला इज फॉर द SIP कि जैसे कि अगर मैं अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट जैसे मैंने 10 लाख डाला हुआ है कि मेरे रिटायरमेंट के लिए मैं प्लान कर रही हूँ, मेरे पास 10 लाख का ऑलरेडी मेरे हस्बैंड के पास EPF NPS में हो गया पैसा इकट्ठा, 10,000 रुपए और मैं एक्स्ट्रा डाल रही हूँ, 9% मैंने इंटरेस्ट रेट लगाया है, 25 साल में अगर करूंगी तो मेरे पास 95 लाख इकट्ठा हो जाएगा. तो इज दैट फिर मुझे ये देखना है ना, ये अमाउंट जो मैंने वहां कैलकुलेट किया था, इज इट मैचिंग. यहाँ पर है मुझे भाई 7,51 लाख का फंड चाहिए और आई एम जस्ट गेटिंग विद 10,000 95 लाख. तो यहाँ पे फिर हमें देखना पड़ता है कि हमें अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है या हमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाना है, कैसे हम उस गोल को अचीव करेंगे. दैट इज अ सेकेंड स्टेप. बट फर्स्ट आप अभी आप फर्स्ट ही स्टेप करिए. आप देखिए कि हाँ जो भी आपने गोल्स लिखे हैं उसके लिए आपको कितना SIP चाहिएगा, कितना आपको SIP चाहिए, कितना आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कितने की आपको सेविंग करनी है. आपको थोड़ा क्लैरिटी आई होगी. यहाँ पे देखो आपके बच्चे का हमने निकाला तो 28,28,000 आपको पर मंथ सेव करना है जस्ट फॉर द वन गोल. एंड इन लाइफ वी आर हैविंग मल्टीपल गोल्स, राइट? Yeah. इधर डाल दिया होगा. Yeah, like that you have to create this. And once you did it, once you do this and you want any clarity, you can send me your sheet and we can have one-on-one also. We can discuss one-on-one also. So just start doing. Just don't wait for the clarity. If you wait for the clarity, it will never come. So it's like in life also what we are learning and thinking ना, कि अगर लाइफ में भी हम सोचते नहीं जब मुझे पता चल जाएगा मेरे लाइफ का क्या पर्पस है, आई विल डू. So that's never going to happen until unless we start exploring and start doing. So same thing is in finance कि अगर हम सोचते रहेंगे कि यार जो भी मेरा पैसा बच रहा है ठीक है, जो भी बच्चे करेंगे कर लेंगे, बट एटलीस्ट यू नीड टू स्टार्ट टू थिंक कि क्या करेंगे, आप क्या चाहते हो कि वो किस लेवल का पढ़ाई करे, कितना आपको उसके लिए बचाना है या कितना बचा सकते हो आप. तो अगर आपका बच्चा आगे कुछ भी करता है, पैसा तो किसी भी चीज में जाएगा, वो किसी भी चीज में लगेगा. तो ये तो हम केवल एक बेस लाइन क्रिएट कर रहे हैं. इट्स अप टू देम व्हाट दे विल बी डूइंग एंड ऑल दोस थिंग्स. So this sheet I have shared in the group. GSS. Yeah. Okay. Thanks. Yeah, welcome. So this is the second formula where you know how much you are investing, your interest rate and the years. So it will automatically change कि आपका फंड कितना बन जाएगा. अगर आप 10,000 रुपए महीने बचा रहे हो, 12% से बचा रहे हो, 9% से बचा रहे हो, कहाँ पे है, तो you will get a general idea. So it's a step by step process. First you need to define your goals, put the timeline and put the inflation. You will get the future value, and then from the future value you need to have the clarity ki how much monthly you need for that goal. And after that when you are having the clarity, then only you can start investing actually कि आपका एसेट एलोकेशन कैसे होना चाहिए. जैसे प्रीति आप बोल रहे थे ना कि आपका कुछ फंड है, आपको निकालना है, क्या करना है, you don't know. When you are having the clarity of your goals, then only you will be able to decide and divide your investment accordingly. Because there are different asset classes. Fixed income है, real estate है, gold है, equity है. Every asset class serves different purpose. We had different session on this, so I'm not going in much detail, but it's just for the general idea. Fixed income के लिए आप क्या करते हो, FD में इन्वेस्ट करते हो, रियल एस्टेट में, या रेंटल कुछ प्रॉपर्टी आपने ले लिया जहां से आपको रेंटल इनकम आ रहा है. गोल्ड में हम करते हैं कि यस प्रीति. Yes. Yeah. So FDs and equity as well as mutual funds, gold as well, but SGBs basically. Yes. So these are the different asset classes. Fixed income like FD हो गया, आपने सुकन्या समृद्धि में इन्वेस्ट किया है. Real estate like कोई rental, not our house. Our house is not an asset. It's a used asset because we are not going to sell it for our goals. We are going to live there. तो यहाँ पे जो रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं, जहां से आपको इनकम आ रहा है, वहां उस चीज की बात कर रहे हैं. देन गोल्ड एंड देन इक्विटी. गोल्ड में भी हम ना ज्वेलरी को एज एन इन्वेस्टमेंट नहीं मानते हैं, क्योंकि हम अपने कोई भी गोल के लिए ना अपनी ज्वेलरी नहीं सेल करना चाहेंगे. अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया है, दैट शुड बी SGB, गोल्ड ETF, या फिर फिजिकल गोल्ड भी अगर आपने लिया है तो गोल्ड बार एंड ऑल दोज थिंग्स. ठीक है. इट शुड नॉट बी कि ज्वेलरी की मैं ज्वेलरी बना लेती हूँ. वी वीमेन नेवर वांट टू सेल आवर ज्वेलरी and it doesn't feel good also.
So when we are doing goal planning, we are not considering jewelry or our own houses in that goal planning, because we will be living in our house, we will be using our jewelry, all these things. And then equity, it's the most risky but most rewarding also. So in the next session, I'm planning to take it to little bit terminologies and all these things. Okay, what is actually equity and is it really speculative, and what is the reason people are doing? Many people think it's speculative. It's not speculative. There is solid reason, solid businesses behind equity. So we need to understand. And the purpose is store of value. Like in gold, we do investment for a store of value. Gold gives the best hedge against inflation. So gold prices always is rise more than the inflation. So you are having the safe store of value. Fixed income and real estate we do for the recurring income, and if we are doing in the equity, it's basically for the capital appreciation. We are looking for higher growth. And this compound interest is the eighth wonder of the world. He who understands earns it, he who doesn't pays it. So yeah, I was supposed to do this example. I think this we will do in the next session. So you guys do till here today, and you can send me the sheet. And if you are facing any problem or not understanding, just don't think यार मेरे को सब कुछ clear हो जाएगा तभी मुझे करना है. वो कभी नहीं आता है. Start doing. आपको ये तो पता है ना, बच्चे की पढ़ाई होनी है, शादी करनी है, रिटायरमेंट का कुछ तो करना है, अपने लिए कुछ पढ़ाई के लिए इकट्ठा करना है पैसा. जो भी आपके माइंड में है, जस्ट स्टार्ट राइटिंग दोस. डोंट वेट कि हाँ मुझे परफेक्ट करना है, बहुत अच्छे से ही करना है. वो बहुत मुश्किल होता है एकदम बहुत अच्छे से जाना. First, start writing, start doing. If you need any help, I'm here to support. Just start doing. And thank you so much for attending. If you have any doubt, you can ask. Yeah, Shweta, I have one doubt. Yes, yes. Actually, I was just entering the details only, and I was looking at the figures that was coming with. I had no idea and clarity before कि इतना ज़्यादा हो जाएगा. मेरे accordingly what I was named, so whatever I have done earlier before. So it's really giving a good picture. I just had one. If you can go to that Excel sheet again, the first Yeah, one. sure. So I had a query in that wellness resort, as you have written, no? So that is like, how is that different from retirement? This is actually my aspiration. You see, it's a low priority goal. If I'm having fund, I will create my business. And retirement is must. क्योंकि हम एक एज के बाद तो हमारा काम करना बंद ही हो जाएगा. दैट इज अवर नीड. हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम रिटायरमेंट का फंड. आज की डेट में हम ये नहीं सोच सकते कि अगर बच्चे करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो ठीक है यार, कहीं वृद्धाश्रम में चले जाएंगे. अभी ऐसा सोच नहीं रखना है. अभी हमें अपने लिए फंड इकट्ठा करना है रिटायरमेंट के लिए. और दिस इज हार्श रियलिटी कि हाँ सबको रिटायर तो होना ही है. और एक एज, और अभी तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ रही है, तो वी विल बी लिविंग मोर. तो हमें उसके लिए फंड इकट्ठा करना ही है. एंड गाइस एक्चुअली ना ये मीटिंग खत्म हो जाएगा, ये अपने आप ऑफ हो जाएगा. So you can rejoin it. That's all. If you can switch on your camera, I will take one pic. And you guys can rejoin also if you have any doubt. Just let me know. It's not coming clear. I think my lenses are dirty. Just 1 minute. Now let me change this slide.